Hello students, let us proceed our chapter seeds and seeds. When you split the whole masoor, you get me masoor dal, but then you cannot sprout me. Can you think why? It means जब आप ब्रेक करते हैं अपनी दाल को होल मसूर तो ये मसूर दाल में बदल जाती है बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी बट वो मसूर दाल ही बोल रही है कि उसके बाद आप उसे स्प्राउट नहीं कर सकते। कैन यू थिंक वाई? ऐसा क्यों होता है? सोचिए। ड्रा लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। अपने स्प्राउटेड चना की जो चने आपने स्प्राउट किए हैं लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी के थ्रू आपने ऐसा करा था उसका आपको ड्राइंग बनाना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क प्लांट योर सीड्स। आपको अपना सीड्स जो है वो एक केन में रोप करना है, लगाना है। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन केन विद अ वाइड माउथ। एक आपको मिट्टी का पॉट लेना है, बर्तन, या फिर टिन की बनी हुई कोई केन लेनी है जिसका जो माउथ है वो वाइड हो, इट मीन्स चौड़ा हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द केन। यू कैन सी दिस केन, this is the bottom and this is the top of the cane. So make a small hole at the bottom of the cane. आपको होल कहाँ करना है? इसके बॉटम में। fill your cane with soil. उसके बाद क्या करना है कि आपको इसमें सॉइल भर देनी है। सॉइल मीन्स मिट्टी। put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. एक ही प्रकार के आपको क्या करने हैं? सीड्स लेने हैं 4 या 5 और उसमें प्रेस कर देना है, लेकिन जेंटली मतलब आराम से। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग सीड्स लेंगे। लाइक दैट मस्टर्ड, फेनुग्रीक, सेसम और कोरिएंडर। डिफरेंट टाइप ऑफ सीड लेना है। सपोज दैट आप क्या करते हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ द सीड की जगह पर मस्टर्ड लेते हैं। मस्टर्ड में सरसों। एंड द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम। उसके लिए आप क्या करते हैं? डेट एक लिख देते हैं यहाँ पर जिस दिन आपने उसे प्लांट किया है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। जब आपका बीज स्प्राउट होके बाहर आ जाए, फट के बाहर आ जाए, तो आपको उसकी लेंथ इसमें फिलअप करनी है डे बाय डे। इसमें एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, हिंट दे रखी है, वो कैसे करना है। टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल। क्या करना है कि आपको पहले थ्रेड से मेज़र कर लेना हाइट उसकी और उसके बाद थ्रेड को मेज़र करना है अपनी स्केल पर। आपके पास स्केल होती है उसे ही। डेट आई हैव सेलेक्ट द डेट 2nd December 2019। यू कैन सेलेक्ट a separate date according to your choice, according to your present date, then fill up your table day by day. On 10th December, the height of the plant is 1 centimeter. The number of leaves you can see in your plant 2. Any other changes? Nil. On 11th December, height of the plant 1.5 centimeter and number of leaves 3. Any other changes? Nil. On 12th December, the height of the plant is 2.5 centimeter and number of leaves 4. Stem has become thicker. Now stem has started to become thicker. On 14th December, the height of the plant is 4 centimeter and leaves 6 and stem has become even more thicker. It means stem has started more thicker. Next is find out how long did it take for the plant to come out from the soil.
प्लांट ने कितना समय लिया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। We see the question one by one to all. Answer is the plant took almost a week to come out of the soil. Next is what was the difference in the height of the plant on the first and second day? क्या डिफरेंस है फर्स्ट डे के प्लांट में एंड सेकेंड डे के प्लांट में? The height of the plant on the first day to the second day has increased by half a centimeter. It is increment happened with the plant. On which day did the height of the plant increase the most? सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग किस दिन हुई है? The height of the plant increased the most on the third day. It was 6 centimeter. Did new leaves come out of the plant every day? Yes, new leaves came out of the plant every day. Was there any change in the stem of the plant? Yes, the stem became thicker and stronger each day passed by. Next question is which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil? Let us see the answer. Answer is seeds of sesame took the most number of days for the stem to come out of the soil. The number of seeds which is taken by different groups, the seeds gives a different result. Which seeds took the least days to come out of the soil? किसने सबसे कम समय लिया सॉइल से कम आउट बाहर निकलने के लिए? सीड्स ऑफ मस्टर्ड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल. जो मस्टर्ड का था सीड्स उसने सबसे कम समय लिया बाहर आने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल? व्हाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच सीड डिड नॉट ग्रो? कौन सा सीड्स है जो अभी भी ग्रो नहीं किया और क्यों नहीं किया? सीड्स रिक्वायर बोथ वाटर एंड एयर. इफ बोथ आर नॉट प्रेजेंट देन नो सीड्स विल डेवलप. सीड्स को अगर वाटर और एयर नहीं मिली, इफ बोथ आर नॉट प्रेजेंट देन नो सीड विल डेवलप, तो कोई भी सीड डेवलप नहीं करेगा. डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो? व्हाई डिड दिस हैपन? क्या किसी का प्लांट जो है ड्राई अप और टर्न येलो सूखा रह गया या पीला पड़ गया, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? यस, फ्यू स्टूडेंट्स प्लांट dried up or turned yellow since there was no proper water or air. जिनको प्रॉपर वाटर और एयर नहीं मिली उनका प्लांट या तो ड्राई हो गया या तो वो पीला पड़ गया. What would happen if the plants do not get water? क्या होता है जब प्लांट को वाटर नहीं मिलता है? If the plant did not get water then it will get dried up. तो प्लांट सूख जाता है. What is inside the seed? क्या होता है सीड के अंदर? Inside the seed there exists a cotyledons and embryo. How does a big plant grow from a tiny seed? एक छोटे से बीज से एक बड़ा प्लांट कैसे बन जाता है? The seeds by absorbing water and nutrients from the soil grows to be a big plant. जो सीड्स होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को बढ़ने में मदद करता है और इस प्रकार एक नया प्लांट तैयार हो जाता है. थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक. ड्रा पिक्चर. क्या होता अगर प्लांट्स वॉक करते? डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट सीड्स के ग्रो करते हैं. प्लांट विच हंट. हियर we are talking about the type of plant which hunt. It means carnivorous plant. कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो कार्निवोरस एनिमल का शिकार करते हैं? There are some plants which trap and eat frogs, insect and even mice. ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो फ्रॉग,
इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, चूहे को भी खा जाते हैं। द पिचर प्लांट नेपेंथीज इज वन सच प्लांट। पिचर प्लांट उनमें से एक है। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय जो भारत में है वहाँ पे पाए जाते हैं। इट हैज अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। इसमें क्या होता है, ये इसकी पिचर टाइप की एक शेप होती है जिसका जो माउथ होता है वो एक पत्ते द्वारा कवर होता है। द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। इसमें एक डिफरेंट टाइप की स्मेल जो है रिलीज होती है जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped. जैसे ही इसके अंदर इंसेक्ट घुसते हैं वो उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, ट्रैप्ड माने फंस जाते हैं, एंड कैन नॉट गेट आउट, और बाहर नहीं आ पाते हैं। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। क्या चतुराई भरा तरीका है हंट करने का, इट मीन्स शिकार करने का। So many seeds. How many types of seeds can you collect? Where will you find them? Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, put all the seeds collection together. Now observe these seeds carefully, their shape, size, colors, texture, and smoothness. Let us see some carnivorous plant and their name. First is sundew. You can see the picture here. And second is Venus flytrap. And third is Sarracenia. And fourth is Cobra lily. Thank you for watching the video. Thank you very much.